Okay, good morning everyone. As we have already started our constant topic है ना, हमने constant को पहले ही start कर दिया था. Okay, so these constants are nothing but the value that can never be changed during execution, है ना, that is called as constant. So there are different types of constants we can create in our program, like numeric constant, character constant and string constant, है ना, as we have seen previously. First, numeric numeric constants, character constants and string constants, these are the different categories of constants. Means इन तरीके के constants हम लोग हमारे प्रोग्राम में क्रिएट कर सकते हैं. Okay, as I have earlier told you, if you are going to create any numeric constant, at least one digit should be there, है ना. जब भी हम लोग न्यूमरिक कांस्टेंट क्रिएट करना चाहते हैं तब उसमें एटलीस्ट एक डिजिट हमको देना पड़ेगा, तभी वो न्यूमरिक कांस्टेंट बनेगा. अदरवाइज एक भी नंबर नहीं है, एक भी डिजिट नहीं है, सो इट शुड नेवर बी न्यूमरिक कांस्टेंट. ओके, नो कॉमा नो स्पेस इज अलाउड इन द न्यूमरिक कांस्टेंट. आपको कॉमा भी अलाउड नहीं है और स्पेस भी अलाउड नहीं है. ओके, while creating numeric constant, while defining numeric constant, no comma no space is allowed. Okay, next, these numeric constants are divided into two categories, that is integer constant and real constant. Okay, integer constants and real constants. Integer constants, that means these constants will have only digits. Okay, no decimal point is there, वहां पर कोई decimal point नहीं रहता integer constant में. Okay, and these integer constants are further divided into three categories, that is decimal, octal and hexadecimal. Okay, decimal, octal and hexadecimal. Okay, this integer constant is further divided into three categories, that is decimal, octal and hexadecimal. Okay, in decimal number 0 to 9 digits we have to use. Okay, any combination of 0 to 9 digit we can create, but remember इट शुड नॉट स्टार्ट विथ जीरो. वो जीरो से स्टार्ट आपको नहीं करना है, ध्यान में रखना है. ओके, डेसिमल कांस्टेंट अगर है सो इट शुड नॉट स्टार्ट विथ जीरो, वो जीरो से स्टार्ट नहीं करना है. ओके, इवन नो स्पेस नो कॉमा इज अलाउड, वहां पर कोई स्पेस भी अलाउड नहीं है और कॉमा भी अलाउड नहीं है. जो न्यूमरिक कांस्टेंट के लिए रूल है वही आपको इंटीजर और रियल कांस्टेंट में फॉलो करना है. ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम में, सॉरी डेसिमल नंबर्स में 0 टू 9 डिजिट्स हम लोग यूज कर सकते हैं. एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 टू 9 डिजिट वी कैन क्रिएट एज अ डेसिमल कांस्टेंट. ओके, इन ऑक्टल कांस्टेंट, as I have earlier told you, its its constant value should starts with 0. Okay, octal constant should starts with 0, 0 से आपको start करना है, and 0 to 7 digits we have to use. Any combination of 0 to 7 digits we can create as a constant to the octal constant. Okay, next, hexadecimal constant. Here we can use 0 to 9 digits, capital A to capital F or small a to small f characters we can use. Okay, to define any hexadecimal constant. Any combination of 0 to 9, capital A to capital F or small a to small f we can use. Okay, to define it as a hexadecimal constant, as I have earlier told you. Now real constant.
रियल कांस्टेंट भी हम लोगों ने देखा था, रियल कांस्टेंट्स आर नथिंग बट फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स, ओके। और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, floating point values, okay. Real constants or floating point values, that is nothing but in which we have to use a decimal point, okay. There is a decimal point. There are, in the particular real constant, two parts are there, mantissa part and exponent part, okay. Before decimal point it should be mantissa part, and after decimal point it should be exponent part, okay. That before decimal point, okay. Before decimal point this is nothing but the mantissa part, and after decimal point it will be the exponent part, okay. Mantissa part, exponent part. The constant in which mantissa and exponent part is available, such type of constant is called as floating point value, okay. Maybe like 10.25, 10.25, sorry, 10.25, 10.25, okay. This is one of the constant value, that is real constant, okay. 10.25. Remember, here is also you have to follow the same rules for numeric constant, okay. That means नो कॉमा नो स्पेस इज अलाउड, यहाँ पर कोई स्पेस कोई कॉमा आपको अलाउड नहीं है, ध्यान में रखना है, ओके। इवन इन इंटीजर एंड रियल, इंटीजर में भी आपको नो कॉमा नो स्पेस इज अलाउड, इन रियल और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देयर इज आल्सो नो कॉमा नो स्पेस इज अलाउड, ओके। एंड here in the floating point values we can represent this floating point value in exponential form. We can represent this real constant or floating point value in exponential form. Exponential form, that means there is the use of capital E or small e. Okay, there is the use of capital E or small e to represent that floating point value in exponential form. हम exponential form में हमारी floating point values को represent कर सकते हैं, okay. वो कैसे, वो भी हमने देखा था, that is maybe suppose हमारे पास एक number है, that is if suppose we have value like 25, okay. If we have such value, that is 2 that means 8 zeros before, after 25, 25 8 zeros, okay. Now we have to represent this value in exponential, okay. Just okay. If suppose we have to represent this value in the exponential form, first of all we need to convert it like this. It is 2.5 into how much will be the power to 10. That means we have put this decimal point, okay, before these are 1 2 2 2 2, that means 8 0 and 5. Before 8 0 and 5 we have put up the decimal point here, that is 2.5, okay. That is 8 plus 1, that is 9, okay. So decimal point में अगर मान लो suppose यहाँ पर decimal point नहीं है, that means decimal point should be where, here, है ना. अगर वैल्यू में डेसिमल पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स, एक मिनट, हेलो, हाँ, हाँ, नाही तुम्ही त्या दिवशी 20 आणि 50 चं म्हणत होते, पण 20 चंच झालं, 50 नाही झालं.
ओके, सो एज आई हैव सीन, एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू, यहाँ पर एक भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। डेसिमल पॉइंट नहीं, एक भी इन द सेंस डेसिमल पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट शुड बी एट द एंड, है ना। लास्ट में डेसिमल पॉइंट है और उसके बाद कितने भी जीरो लगा दो, वैल्यू शुड बी नेवर चेंज, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, हम क्या कर रहे हैं, इस डेसिमल पॉइंट को इधर बैकवर्ड लेके आ रहे हैं, बैकवर्ड लेके आ रहे हैं। ओके, डेसिमल पॉइंट शुड बी हियर, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है ना। वैल्यू में अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट कहाँ पर रहेगा, रियल कांस्टेंट में एट द एंड। ओके, हम इस वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस डेसिमल पॉइंट को बैकवर्ड में लेके आना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू पुट दिस डेसिमल पॉइंट हियर। हमने डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे रखा, 2 और 5 के बीच में। ओके, दैट इज वी हैव टू मेक इट एज अ 2.5। ओके, दैट इज 2.5 मींस डेसिमल पॉइंट को हम कितने डिजिट्स पीछे लेके आए, 2 4 6 8। ओके, 8 प्लस 5 दैट इज 9। ओके, 5 ये भी एक डिजिट है, सो 8 डिजिट्स। लेकिन अभी तक नहीं, उसका पॉइंट ना पता नहीं, शायद से जाएगा अभी, थोड़ा केयरफुली करना, क्योंकि ये अभी जाएगा, अभी ये थोड़ा केयरफुली। Okay, what we have done, we have put this decimal point before 5, है ना। बिफोर 5 हमने डेसिमल पॉइंट को रखना है, क्यों, क्योंकि हमको इस वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, सो 2.5 में वी हैव मेक इट एज अ 2.5, और कितने डिजिट पहले हमने डेसिमल पॉइंट को लाया है, 8 डिजिट, दैट इज 4 टाइम्स दो, these are 2 0, 2 2 2 2 means 8 0 और 5, that means 9 डिजिट के पहले हमने डेसिमल पॉइंट को लाया। ओके, सो 2.5 ओके इनटू 10 टू पावर, कितने डिजिट पहले लाया है, 9 डिजिट। ओके, सो इट विल बी अ पावर टू 10, that is 9। ओके, सो 2.5 into 10 to power 9, 2.5 into 10 to power 9, वो वैल्यू यही बनेगी, है ना, यही बनेगी 2.5 into 10 to power 9। Okay, now we can represent this value in exponential form easily. How? That is 2.5. 2.5. Okay. इस पार्ट को हम एक्सपोनेंशियल पार्ट के बाद में लिखते हैं, दैट इज ई के बाद। ओके, ई के बाद 2.5 ई, और पावर में जो वैल्यू है दैट विल बी वी हैव टू पुट आफ्टर ई, दैट इज 9। ओके, 2.5 ई 9। ओके, आप इस ई को कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। ओके, either we can use capital E or small e to represent any real value in the exponential form. Okay, we can use capital E or small e to represent any real value in exponential form. एक और वैल्यू लेते हैं, जैसे कि मान सपोज 0.76, 0.00000076। okay, we have to convert this value in exponential form। हमको इस रियल वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, हम इस डेसिमल पॉइंट को आगे लेके जाए। ओके, वी हैव टू पुट दिस डेसिमल पॉइंट आफ्टर दिस। ओके, कितने डिजिट आगे लेके जा रहे हैं, 2 4 5 और 6। ओके, 2 2 2। ओके, दैट इज 2 2 2, 6 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। ओके, हमारा डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर। ओके, आवर डेसिमल पॉइंट इज हियर। ओके, हम क्या कर रहे हैं, वी आर मूविंग दिस डेसिमल पॉइंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, सो वी हैव टू मेक इट एज अ 7.6, 7.6। ओके, we have make it as a 7.6, कैसे 6, this is 7.6। okay, into 10 to power, 10 to power, अब हमने हाँ, yes exactly, -6।
हाउ मच डिजिट वी हैव, कितने डिजिट हमने आगे में लेके आए डेसिमल पॉइंट को, 222 मींस 6 डिजिट हमने लेके आए आगे में, सो माइनस 6 शुड बी देयर, माइनस 6 शुड बी देयर, 7.6 into 10 to power minus 6. Okay, now we can represent this value in exponential form easily. How? Just we have to put this before e, 7.6 e, 7.6 e, और पावर में 10 के पावर में जो भी वैल्यू है वो e के बाद लिख लेना है, दैट इज माइनस, that is minus. Okay, 7.6 e minus 6. Okay, are you getting? एक और वैल्यू लेते हैं, that is 67. Here is minus, okay, minus 670000. ओके, अब सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म में लेके आते हैं हमारी इस वैल्यू को, कैसे? डेसिमल पॉइंट कहां पर रहेगा? यहां पर अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, दैट मींस डेसिमल पॉइंट शुड बी एट लास्ट, है ना, सबसे लास्ट में डेसिमल पॉइंट है, सो वी हैव टू मूव दिस डेसिमल पॉइंट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, तो सो दैट वी कैन मेक इट एज अ -6.7, -6.7 डेसिमल पॉइंट को हम आगे लेते हैं, सॉरी पीछे लेते हैं, डेसिमल पॉइंट को हम पीछे लेते हैं, सो दैट वी कैन मेक इट एज -6.7, -6.7 इनटू कितने डिजिट हम पीछे लेते हैं? 5 डिजिट, ओके, 5 डिजिट हम डेसिमल पॉइंट को पीछे लेते हैं, दैट इज 0 0 0 0 एंड 7, ओके, 5 डिजिट्स हमने डेसिमल पॉइंट को पीछे लेते हैं, ओके, सो 10 टू पावर कितना लिखना पड़ेगा हमको? 10 टू पावर 5, है ना, 10 to power 5. Now we can make this in exponential form easily, है ना, इजीली हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? -6.7 e after e 5, okay, -6.7 e 5, okay, in this way we can represent any real value in the exponential. इस तरीके से हम लोग किसी भी रियल वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू एवरीवन? यस सर। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। जैसे कि हमने न्यूमेरिक कांस्टेंट यहां पर देख लिया, अब कैरेक्टर कांस्टेंट है, ओके, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? A constant value that can have only single character, okay, a constant value that can have only single character, such type of constant is called as character constant। ऐसी constant value जिसमें सिर्फ एक ही character रहेगा, okay, that is called as character constant, and that value should be enclosed within single quotation mark, okay, the value should be enclosed within single quotation mark, such type of constant is called as character constant। ऐसी constant value जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर रहेगा और वो कैरेक्टर सिंगल कोटेशन मार्क से एनक्लोज्ड रहेगा, ओके, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके, सो लाइक दिस, हियर इट इज सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हम लोग एक कैरेक्टर लिखेंगे लाइक दिस, within a single quotation mark we have to put a single character, okay, such type of constant is called as character constant, okay। तो आप कैरेक्टर कुछ भी ले सकते हैं, आप अल्फाबेट्स को भी एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, सिंगल डिजिट को भी एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू इट्स ASCII वैल्यू इट विल बी कंसीडर्ड एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट, ओके, इफ इट इज एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोटेशन मार्क ओनली। रिमेंबर, अगर वो कैरेक्टर सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर है तभी हम बोलेंगे इट इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। किसी भी अगर सिंगल कोटेशन मार्क नहीं है तो कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं रहेगा।
सिंगल कोटेशन मार्क है लेकिन कैरेक्टर अगर नहीं है तो भी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं रहेगा, मींस एटलीस्ट वन कैरेक्टर शुड बी, एटलीस्ट वन इन द सेंस ओनली वन कैरेक्टर शुड बी देयर, ओके, एक ही कैरेक्टर वहां पर रहना चाहिए, बट कैरेक्टर शुड बी देयर, ओके, कैरेक्टर शुड बी देयर एंड दैट कैरेक्टर शुड बी एटलीस्ट वन, ओके, एक ही रहेगा, ओनली वन, एक ही कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर अगर सिंगल कोटेशन मार्क से है, मार्क के अंदर है, सो दैट वी कैन मेक इट एज से दैट इट इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर डिजिट हमने लिखा है, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हमने डिजिट लिखा है, सो दैट इट इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट, इट इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। कैसे बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज इट इज एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोटेशन मार्क, हेंस इट इज कैरेक्टर कांस्टेंट। रिमेंबर, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर एक भी कैरेक्टर नहीं है, ओके, सो इट इज इनवैलिड, इट इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, आपको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर एक तो भी कैरेक्टर देना चाहिए, देना है, ओके, वेदर इट मे बी अ स्पेशल कैरेक्टर और एनीथिंग, any character, any value, any digit, any value in the sense any single value, single digit value, okay, we can make it as a character constant, okay, but here हमने एक भी कैरेक्टर लिखा नहीं है, that means it is invalid, it is illegal, it is not allowed, it is not allowed, these are allowed, okay, ये allowed है लेकिन ये allowed नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक भी कैरेक्टर हमने लिखा नहीं है, ओके, स्पेशल कैरेक्टर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइक दिस डॉलर्स है ना, स्पेशल कैरेक्टर वी कैन मेक इट एज अ कांस्टेंट वैल्यू, ओके, अगर वो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर है, सो दैट वी कैन मेक इट एज अ कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, बट अगर एक भी कैरेक्टर नहीं है, सो इट इज इलीगल, ये अलाउड नहीं, ओके, इट इज अलाउड, मोर देन वन कैरेक्टर आल्सो नॉट अलाउड, लाइक दिस, मोर देन वन कैरेक्टर आल्सो नॉट अलाउड, क्यों, क्योंकि वो हमने पहले ही बोला है, इट इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं बोला हमने, कैरेक्टर कांस्टेंट मींस वहां पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, ओके, एंड दैट कैरेक्टर शुड बी इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोटेशन मार्क, ओके, लेकिन यहाँ पर तो रूल हमारा वायलेट हो रहा है, रूल हमारा वायलेट हो रहा है, यहाँ पर मोर देन वन कैरेक्टर हमने यूज किए, ओके, तो अलाउड नहीं है, ओके, सो हेंस इट इज इलीगल, इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड, इट इज इनवैलिड, ओके, आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है, ओके, नेक्स्ट, सो ASCII वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, that is from capital A to capital Z, it is 65 to 90, right? 65 to 90, small a to small z, इसकी ASCII वैल्यू 97 to 122, okay, and 0 to 9 42, okay, these are some of the ASCII values, ASCII values of capital A to capital Z, that is 65 to 90, small a to small z, that is 97 to 122, 0 to 7, that is 0 to 9, that is 48 to 57. Okay, these are some of the ASCII values that we can consider to make anything as a character constant. Okay, किसी भी चीज को हमको अगर एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट डिफाइन करना है तो कंपाइलर हमारा क्या करेगा, ASCII वैल्यू को कंसीडर करके उसको एज कैरेक्टर कांस्टेंट डिफाइन करेगा, ओके, ये ध्यान में नहीं रखना, आपको कैरेक्टर कांस्टेंट कैसे डिफाइन करना है वो आपको ध्यान में रखना, ओके, ये ध्यान में नहीं भी रखा तो भी चलेगा, ओके, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि कैरेक्टर कांस्टेंट कैसे डिफाइन करना है, a single character should be enclosed within single quotation, single character should be enclosed within single quotation mark, okay, no more than one character should be there, okay, एक भी कैरेक्टर नहीं दिया, it is also not allowed, okay, समझ में आ रहा है, if within single quotation mark you have not put any character, so it is not allowed, if you have put more than one character within single quotation mark, it is also not allowed, okay, हम फिर सिंगल कैरेक्टर मींस अल्फाबेट बोलो या तो फिर डिजिट बोलो या तो फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर को हम कैरेक्टर कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, इफ इट इज ओनली एंड ओनली इफ इट इज enclosed within single quotation, okay, last but not the least, that is string constants, okay,
नाउ स्ट्रिंग कांस्टेंट, सबसे पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट देखने से पहले आपको स्ट्रिंग क्या होता है वो पता होना चाहिए। ओके, दैट स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, मोर देन वन कैरेक्टर शुड बी देयर। ओके, मोर देन वन कैरेक्टर, एटलीस्ट वन कैरेक्टर रख सकते हैं हम लोग, और मोर एक से ज्यादा अगर आप रख रहे हैं तो वो भी चलेगा। ओके, the particular constant value that can have more than one character or sequence of characters, such type of constant is called as string constant. Okay, and that constant value should be enclosed within double quotation. Okay, that constant value should be enclosed within double quotation mark, that is called as string constant. How? जैसे कि मान लो सपोज ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर हमने a लिखा है। ओके, रिमेंबर डबल कोटेशन मार्क शुड बी देयर। ओके, फिर उसके अंदर कितने भी कैरेक्टर लिखो चलेगा। ओके, बट मोर देन वन, वन और मोर देन वन। ओके, जीरो नहीं चलेगा। ओके, मींस एम्प्टी नल स्ट्रिंग नहीं चलेगा। वहां पर एक भी कैरेक्टर नहीं लिखा आपने डबल कोटेशन मार्क में तो वो अलाउड नहीं है। ओके, एम्प्टी सिंगल डबल कोटेशन मार्क इज नॉट अलाउड। empty double quotation mark is not allowed, is not allowed। Okay, there should be at least one thing, there should be at least one character in the string constant। string constant में at least one character should be there। character constant में only one character should be there। Okay, only that is the difference between, sorry, and one more difference is there, in the character constant we have to use single quotation mark, in the string constant we have to use double quotation। Okay, only these two differences are there in the character constant and string constant। Okay, कौन से डिफरेंसेस है, स्ट्रिंग कांस्टेंट में हमको डबल कोटेशन मार्क यूज करना है, कैरेक्टर कांस्टेंट में सिंगल कोटेशन मार्क यूज करना है। ओके, स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम लोग एटलीस्ट वन कैरेक्टर रख सकते हैं और कैरेक्टर कांस्टेंट में ओनली वन कैरेक्टर रखना है। ओके, only these are the difference between string constant and character constant। Okay, within this double quotation mark we can put more than one character like a, b, c, it is allowed। ओके, डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम लोग एक से ज्यादा कैरेक्टर्स रख सकते हैं। ओके, सो दैट वी कैन मेक इट एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। इट इज अलाउड, इट इज अलाउड, इट इज अलाउड। ओके, मोर देन वन कैरेक्टर शुड बी देयर। ओके, मोर देन वन कैरेक्टर वहां पर रह सकते हैं। जैसे कि 123, 123 it is also valid string constant because it is enclosed within double quotation। without double quotation mark it is not valid। Okay, like this 123, it is not a valid string constant, ये allowed नहीं है। Okay, if you have to make it as a string constant, that value should be enclosed within double quotation mark like this। Okay, अगर आपको 123 को स्ट्रिंग कांस्टेंट डिफाइन करना है तो आपको उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज इट इज इनवैलिड, अदरवाइज इट इज इनवैलिड। ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि इसमें डिजिट्स हमने यूज किए। ओके, और डिजिट्स हम लोग इंटीजर में और या तो फिर रियल में यूज कर सकते हैं। ओके, न्यूमेरिक कांस्टेंट में हम लोग डिजिट्स यूज कर सकते हैं, और अगर डिजिट्स को एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट डिफाइन करना है तो आपको डबल कोटेशन मार्क यूज करना होगा, so that we can make it as a string constant। Are you getting? Is that clear to you? String constants. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now you will have to tell me that I'm going to write some examples over there on the board. You have to tell me these are valid or invalid। Okay. सर आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है। कैसे आ रहा है मेरा आवाज? आवाज कैसे आ रहा है? बराबर नहीं आ रहा इन द सेंस वो ब्रेक हो रहा है सर आवाज। ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है कि लेट आ रहा है? ब्रेक हो रहा है ब्रेक हो रहा है, और स्क्रीन भी ब्लैक हो रही है। स्क्रीन क्लियर नहीं है, स्क्रीन दिख नहीं रहा है क्या आपको? स्क्रीन दिख रही है सर। हाँ, हाँ सर दिख रही है सर। आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही है, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, आ रही ना आवाज, आ रही ना? ओके, मैं बोलते वक्त माइक के पास आ। ओके ओके ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम एग्जांपल्स ऑन द बोर्ड। यू विल हैव टू टेल मी दैट these are valid string constants or not। okay,
Okay. Now first one, valid or invalid? invalid, Valid है या invalid है? invalid, Invalid. कैसा? How can you say that it is invalid? first single quotation नहीं बेटा, it's a double quotation mark. दिख नहीं रहा है क्या? it is valid, valid, Okay, it is a valid string constant. Okay, valid. Second one, valid, valid is valid. valid, Okay. Next, third one. invalid, Tell me the reason why it is invalid string constant. single quotation Okay, single quotation mark is there, है ना? Hence it is invalid. Next, invalid, reason empty quotation empty double quotation mark हमने use किया, means वहाँ पर कोई character लिखा नहीं है, इसलिए it is invalid. Okay. Next, no quotation, valid or invalid? invalid sir, Invalid, है ना? Because no double quotation mark is there, है ना? We have not put that value within the double quotation mark, hence it is invalid. हमको अगर उसको वैलिड करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये वाला एग्जांपल है ना, we have to put this value within the double quotation mark. Okay, so it is valid, है ना? Valid. Okay, that means it is clear to you how can we make any value as a string constant, any value as a character constant, any value as a numeric constant. Clear to you? Next, now we have one more type of constant, that is symbolic constant. हमारे पास एक और टाइप का constant है, that is symbolic constant. Where should I write this one? Symbolic constant. Okay, and this symbolic constant we have to define before writing any code, or in place of we have defined header files. जहाँ पर भी हम लोग header files define करेंगे, okay, वहाँ पर हमको इन symbolic constants को define करना पड़ेगा. Means at the beginning of our program, okay, we have to define this symbolic constant at the beginning of our program. प्रोग्राम के पहले हमको symbolic constants को define करना पड़ेगा. Okay, and to define this symbolic constant we have to use some particular format. Okay, and that format is nothing but define hash define. Okay, after this we have to write the name of that particular symbolic constant. Okay, जैसे कि हमारे पास pi की वैल्यू थी pi 3.14 है ना, pi 3.14, pi की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ pi is nothing but 3.14 है ना. So we have to define this pi value. Okay, तो इसके लिए हमको एक वेरिएबल, एक नाम उसको देना पड़ेगा. Okay, and that name should be in the capital letters. Okay, इसका नाम आपको कैपिटल लेटर में ही देना पड़ेगा, like this pi. Suppose so. Okay, just assume that we have given name to this pi like this pi. Okay, and we have to define this pi value as a symbolic constant, so we have to use this format, that is hash define the particular name of that constant, that is like pi. Okay, and we have to define its value like 3.14. Okay, after it, that is 3.14. Okay,
In this way we can define the symbolic constant at the beginning of our program. Okay, जहाँ से हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे वहां पर हमको symbolic constant को define करना है. Okay, and the format should be this one. Okay, like hash sign define. This is the name of that particular symbolic constant value and this value का name है, that is 3.14. If you have to use this, you have to use particular name. Okay, अगर इस value को जहाँ जहाँ आपको use करना है वहाँ आप क्या use करेंगे, name of the value, this part, pi. Okay, and 3.14 is the value, corresponding value. Okay, wherever we have used that pi, okay, in place of that pi it will consider 3.14 value. जहाँ जहाँ पी आई वैल्यू आपने पी आई जहाँ जहाँ यूज किए वहाँ पर आपकी 3.14 वैल्यू कंसीडर कीजिए. ओके, सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन सम सिंबॉलिक कांस्टेंट्स. ओके, इस तरीके से हम लोग सिंबॉलिक कांस्टेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं. ओके, इज दैट क्लियर टू यू everyone? Is that clear to you? How to define the symbolic constant? We have to use hash sign define name of that particular constant and the value that we have to make it as a constant value. Okay, are you getting? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? हमको क्या करना है, सिंबॉलिक कांस्टेंट्स को डिफाइन करना है. ओके, तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया एक्चुअली. name constant value. Okay, this is the format to define symbolic constant. Okay, this is the format to define symbolic constant. Hash define name and value. Okay, this format you have to follow to define any symbolic constant. Symbolic constant means हम किसी भी वैल्यू को पहले ही डिफाइन करना चाहते हैं कि ये कांस्टेंट है. Okay, globally we have to define that value as a constant value. Okay, at that time we have to use this symbolic constant. ग्लोबल इन द सेंस आप प्रोग्राम में जहां कहीं भी उस वैल्यू को यूज करोगे इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू. ओके, इट विल नेवर चेंज, इट विल नेवर चेंज. हमारा प्रोग्राम ब्लॉक में भी हो सकता है, जैसे कि अलग अलग फंक्शंस होते हैं, मेन फंक्शन है, कोई और फंक्शन है, तीसरा फंक्शन है. ओके, यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं. तो हमारा प्रोग्राम ब्लॉक्स में अगर है तो हर एक ब्लॉक में अगर उस कांस्टेंट को यूज अगर हम करना चाहते हैं तो उस कांस्टेंट को ब्लॉक में डिफाइन ना करते हुए ग्लोबली मींस किसी भी ब्लॉक के अंदर ना डिफाइन करते हुए बाहर डिफाइन करेंगे. ओके, ब्लॉक के बाहर डिफाइन करेंगे ताकि वो वैल्यू किसी भी ब्लॉक में अगर आप यूज करना चाहो तो आप कर सकते हैं. ओके, इट इज डिफाइंड ग्लोबली. ओके, इफ यू हैव टू डिफाइन कांस्टेंट ग्लोबली देन आफ्टर यू हैव टू यूज द सिंबॉलिक कांस्टेंट. ओके, अगर आपको किसी भी वैल्यू को ग्लोबली कांस्टेंट डिफाइन करना चाहते हो तो आपको सिंबॉलिक कांस्टेंट का फॉर्मेट यूज करते हुए उसको डिफाइन करना है. ओके, सिंबॉलिक कांस्टेंट को हम एट द बिगिनिंग प्रोग्राम के बिगिनिंग में हम लोग डिफाइन करेंगे. ओके, और डिफाइन करने का तरीका, दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द सिंटैक्स टू डिफाइन एनी सिंबॉलिक कांस्टेंट. किसी भी सिंबॉलिक कांस्टेंट को अगर आपको डिफाइन करना है तो यही सिंटैक्स आपको फॉलो करना है. दैट इज हैश define name. In place of name it is an identifier. Okay, ये identifier, it is an identifier. आप name की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं. उस वैल्यू का जो भी नाम होगा आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे. Okay, and the name either we can use in lower letters or capital letter चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, but उन्होंने बताया they recommend that the name should be in capital letter. Okay, they recommend that name should be in capital letter. Okay, so hence we have used here pi in capital letters. Okay, तो अगर मान लो सपोज हमको पाई की वैल्यू कांस्टेंट डिफाइन करना है वो भी ग्लोबली. ओके, सो वी हैव टू यूज दिस सिंबॉलिक कांस्टेंट फॉर्मेट. ये फॉर्मेट हमको यूज करना पड़ेगा. ओके, नाउ हाउ वी कैन यूज इट लाइक दिस. एग्जांपल, hash define we have to use as it is. So hash define, हैश डिफाइन को हमको एज इट इज यूज करना है तो हमने हैश डिफाइन लिखे. नेम की जगह पर आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को नाम दे सकते हैं. ओके, जैसे कि 3.14 दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई. ओके, तो हम नेम की जगह पर क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर. तो मे बी सपोज नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर दैट इज
पी आई, नेम की जगह पर हमने क्या लिखा, पी आई, पाई, ओके, दैट इज द नेम ऑफ दैट वैल्यू, ओके, एंड वैल्यू जस्ट आफ्टर वी हैव टू डिफाइन द नेम, ओके, दैट इज हियर 3.14, 3.14, ओके, सो फॉर्मेट हमने फॉलो किए, हैश की जगह पर हैश यूज किए, डिफाइन की जगह पर डिफाइन यूज किए, नेम की जगह पर इट इज यूजर डिफाइंड, इट इज एन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर इज नथिंग बट क्या है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर इज नथिंग बट द नेम ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू, है ना, नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग, ओके, किसी भी चीज का एक नाम होता है, दैट इज नथिंग बट एन आइडेंटिफायर, लाइक मैं हूं तो मेरा नाम है, ओके, माय नेम इज एन आइडेंटिफायर, ओके, ऑफ माय सेल्फ, योर नेम इज एन आइडेंटिफायर ऑफ योरसेल्फ, मैं मेरे नाम से पहचाना जाऊंगा, आप आपके नाम से पहचाने जाते है ना, इन द सेम वे दैट 3.14 वैल्यू इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेम, दैट इज पा, है ना, सो हेंस that pi is nothing but an identifier, okay, so in place of that name we have put up pi bar, okay, नेम की जगह पर हमने क्या लिखा है, pi लिखा है, क्यों, क्योंकि वो आइडेंटिफायर है इसका 3.14 का, ओके, एंड आफ्टर नेम वी हैव टू पुट द वैल्यू, नेम के बाद हमने क्या लिखना है, वैल्यू लिखना है, तो इसलिए हमने pi के बाद क्या लिखा है, उसकी वैल्यू दैट इज 3.14, ओके, तो इस 3.14 को आप प्रोग्राम में जहां जहां यूज करना चाहते हैं वहां वहां पर आप क्या यूज करेंगे, उसका नाम दैट इज पाई, ओके, समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल हमको फाइंड आउट करना होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ओके, तो इन केस किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में अगर एरिया ऑफ सर्कल हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, ओके, तो उसका फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल है, तो पता है पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल, ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाई पाई की वैल्यू हमको पता है 3.14 जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है सिंबॉलिक कांस्टेंट, है ना, symbol as a symbolic constant we have defined 3.14 value, okay, so in place of that pi value, pi, what we have to use, pi, okay, in place of that pi we have to use pi, तो कैसे यूज करेंगे, pi pi into into अब r स्क्वायर, आर स्क्वायर हम एक्सपोनेंट में, प्रोग्राम में हम एक्सपोनेंट में वैल्यू नहीं लिख सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आर को 2 बार लिखेंगे, है ना, आर इंटू आर, ओके, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर दैट इज पाई आर स्क्वायर, है ना, सो इन दिस वे वी कैन यूज दैट 3.14 वैल्यू, ओके, तो जहां जहां आपको 3.14 वैल्यू यूज करना है वहां वहां पर उसके नाम से आप उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे लाइक दिस, ओके, जहां जहां पर आपको 3.14 वैल्यू यूज करना है वहां वहां पर आपको उसके नाम से उसको एक्सेस करना है इस तरीके से, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ओके, आर यू गेटिंग, इफ सपोज द रेडियस ऑफ पर्टिकुलर सर्कल इज 3, if suppose radius of circle is 3, okay, now we have to find out the area of circle, so how can we find out, 3 pi into r, that is 3.14, यहाँ पर क्या कंसीडर करेगा आपका कंपाइलर, वैल्यू ऑफ दैट सिंबॉलिक कांस्टेंट, and value of that symbolic constant is nothing but 3.14, so here in place of that pi 3.14 will be considered, okay, in place of that pi 3.14 value will be considered, 3.14 into 3 into 3, okay, are you getting, समझ में आ रहा है, okay, in this way we can define any symbolic constant at the beginning of our program, okay, इस तरीके से हम लोग हमारे प्रोग्राम के अंदर at the beginning we can define our symbolic constant, okay, ऐसे जितने भी कॉन्स्टेंट्स आपको डिफाइन करने हैं अगर आप प्रोग्राम के पहले ही डिफाइन कर रहे हैं, ओके, सो इट इज बेटर, ओके, क्योंकि अगर आप बीच में कहीं अगर कोई सिंबॉलिक बीच में कहीं अगर कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे हैं, ओके, जैसे कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, ओके, तो उस ब्लॉक के अंदर ही उस वैल्यू को एज ए कांस्टेंट
कंसिडर करेगा, उस ब्लॉक के बाहर उस वैल्यू को कांस्टेंट डिफाइन नहीं करेगा, कंसिडर नहीं करेगा। ओके, हम ऐसा नहीं चाहते। पाई की वैल्यू को हम पूरे प्रोग्राम में 3.14 ही रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस पाई की वैल्यू को सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे। मींस एट द बिगिनिंग वी हैव टू डिफाइन इट एज अ कांस्टेंट लाइक दिस। ओके, ठीक है, इन दिस वे वी कैन डिफाइन सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। नेक्स्ट, अब हमने ये रियल वैल्यू को डिफाइन किया, किसी को कैरेक्टर को अगर डिफाइन करना है कांस्टेंट तो वो भी हम लोग कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द सेम फॉर्मेट। ओके, सेम फॉर्मेट को हमको फॉलो करना है, इतना ध्यान में रखना है। हैश डिफाइन नेम, दैट इज नथिंग बट एन आइडेंटिफायर, और उसकी वैल्यू फिर चाहे कैरेक्टर रहे, चाहे स्ट्रिंग रहे, चाहे इंटीजर रहे, कुछ भी हो। ओके, आपको डिफाइन करना है, लेकिन कैरेक्टर है तो वैल्यू को आपको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है, स्ट्रिंग है तो आपको उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है। ओके, आर यू गेटिंग? जैसे कि हैश डिफाइन नेम, ओके, तो इस एग्जांपल में हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन किया। ओके, रिमेंबर द वैल्यू मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन डबल quotation mark if it is string. Okay, and if you have to define it as a symbolic constant, so you can use this particular format, that is hash define name of that particular identifier and the value of it. Okay, तो आप नेम जहां जहां यूज करोगे प्रोग्राम में, वहां वहां पर क्या होगा, अनुपम इस स्ट्रिंग को कंसिडर किया जाएगा। एंड रिमेंबर, कांस्टेंट वैल्यू विल नेवर चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम। कांस्टेंट जो भी है, जिस भी वैल्यू को आपने कांस्टेंट डिफाइन किया है, उस वैल्यू को हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन होते समय चेंज नहीं कर सकते। इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग योर प्रोग्राम, यू कैन नेवर चेंज द पर्टिकुलर वैल्यू। कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, हमको पता है ना, कांस्टेंट वैल्यू विल नेवर चेंज, ओके, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम। तो इतना ध्यान में रखना है। ओके, सो सेम फॉर्मेट शुड बी, आपको फॉर्मेट यही यूज करना है। ओके, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि क्या फॉर्मेट यूज करना है वैल्यू के लिए। ओके, स्ट्रिंग है सो इट मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन डबल कोटेशन मार्क, कैरेक्टर है सो इट मस्ट एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोटेशन मार्क। ओके, बाय फॉलोइंग सम रूल्स, जो भी रूल्स है उसके उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही सिंबॉलिक कांस्टेंट को आप एट द बिगिनिंग ऑफ योर प्रोग्राम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर टू यू एवरीवन? ओके, सो आज के लिए इतना काफी रखते हैं या आगे बढ़ना है? आज के लिए काफी है सर। आज के लिए काफी है, कौन बोला रे? लड़की बोली सर। ओके ओके,